दुर्गापुर थाना अंतर्गत पावर हाउस बस्ती इलाके में ट्रंक से एक महिला का सड़ा गला लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर सब डिवीजन अस्पताल भेज दिया। मृतका की पहचान 26 वर्षीय रेखा मंडल के रूप में हुई है और वह बेनचती बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान में काम किया करती थी। घटना के बाद से ही मृतका का पति सुभाष मंडल फरार बताया जा रहा है, जो पेशे से एक राजमिस्त्री था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल महिला की मौत पर रहस्य बना हुआ है। यह मामला हत्या का है या फिर कुछ और, पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात उनके घर में तीव्र दुर्गंध आने पर आस पड़ोस के लोगों को शक हुआ। पड़ोस के लोग उसके घर पहुंचे और कपड़े रखने वाले ट्रंक को खोला तो देखा कि उसमें रेखा मंडल का सड़ा गला लाश पड़ा है। घटनास्थल पर पहुंचे एसीपी ईस्ट तथागत पांडे ने कहा कि पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला के मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। মারা গেছে কি নাম তার? রেখা মন্ডল, আর ওনার হাজবেন্ডের কি নাম? ছোটে মন্ডল, কি করে ছোট মন্ডল? রাজমিস্ত্রি কাজ করে স্যার। আর বউ? ও বউ Housewife? শালবাগানে মোলে কাজ করে। শালবাগানে? শালবাগানে মোলে কাজ করে। আর কখনো হলে বিচিং এর একটু সকালবেলা গিয়ে 6টার সময় বিচিং এ মাল ফাল একটু ভরে চলে আসে 8টার মধ্যে। আবার 9:30 থেকে যায় কাজে। আজকে কি 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 শুনতে পেলেন যে এরকম? কখন জানতে পারলো? এই তো 9টার সময়, এই 10টার সময় আমি একবার একা ঢুকলাম ঘরে, ঢুকলাম চিনি আনতে। ছেলেটা জ্বর আছে বলে চিনি আনতে ঢুকেছি, কি একটা গন্ধ ছাড়লো, হয়তো ইঁদুর ফিন্দুর মরেছে নাকি কিছু সেরকম, মানে সব ঘর গুছানো তো ওইগুলো তো আমরা টেনে সব বের করেছি ভিতর দিয়ে। তারপরে উনার বড় দিদিটা ছোট যার দিদি এসছে, উনার ছেলে এসে ওর মাকে ডেকে এনেছে। মা কিসের গন্ধ ছাড়ছে? আমি ঘুমিয়েছিলাম, উঠে এলাম, হ্যাঁ দেখছি লাইট ফাট দেখাচ্ছি, কিসের গন্ধ? সব খাটের তলায় থেকে ট্র্যাঙ্ক ফ্র্যাঙ্ক থেকে সব কাপড় ফাপড় উনার বাবা আর মা দুজনে বের করলো। আমিও ছিলাম, ওর দিদি ছিল। দিয়ে লাস্টে ওনার বাবাটা না কাপড়টা বের করলো, এমনি টিপে দেখছে কি জল বেরোচ্ছে। তখনই তো বুঝতে পারিনি, তখনই তো দেখলাম কি মেরে দিয়েছে। মানে ট্রাঙ্কের ভিতরে? ট্র্যাঙ্কের ভিতরে আছে। মানে হাজবেন্ড কোথায় আছে? ও তো কাল সকাল থেকে নেই স্যার, পালিয়ে গেছে? পালিয়ে গেছে। এবার আমরা যেখানে কাজ করে ওখানে জিজ্ঞেস করলে বলে কই এখানে আসেনি তো। আমরা জানি হয়তো স্বামী স্ত্রী কোথাও গিয়েছে আর একটু রাগটাগ হয়েছিল, চলে গেছে। কি সন্দেহ করছেন এখন? কি সন্দেহ করবো স্যার? মানে স্বামী কি মেরে ফেলেছে? এবার কি করে আমি বলবো? এবার উনি ঘরে থাকলে তাও বলা যেত কি হ্যাঁ উনি আছে, উনি তো নাই, ওনার স্বামীর তো মেন নাই। উনার এমনি ছেলে ফেলে কটা? একটাই ছেলে স্যার। কত বড় বয়স? এই 10 বছরের হবে। ছেলেটা কোথায় এখন? ওই তো এখানে বড় স্যার ডেকেছিল, ওই স্যার ডেকেছিল, এনেছিলাম। কালকে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ছেলেটাকে? ওই মানে হাজবেন্ডটাকে? না কাল থেকে আসেনি ঘরে, ও আসেনি। দিয়ে কাজ থেকে আমরা তো মাও কাজে চলে যায়, আমিও চলে যায়, ওনার দিদিও ঢেলা লাগায়, উনি চলে যায়। বাচ্চা 4টা বাচ্চা ঘরে থাকে, আর শ্বশুরও কাজে চলে যায়। পুলিশ এসছে? আমার স্বামী এসে খেয়ে দিয়ে উনিও চলে যায় কাজে। ওই যে পুলিশ এসছে এখন? হ্যাঁ। মানে কাউকে কিছু কি মনে হচ্ছে, কোনো সন্দেহ কিছু এমনি এদের ঝামেলা হতো? অশান্তি কিছু ঝামেলা হতো? আর পরশু দিনে এমনি ঝামেলা হয়েছিল, ওনার দিদি এসেছিল তো, খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছিল। দিয়ে ছোট দেওয়াটা বলে তুই অমনি কেচার কেচার করলি না, তোকে দেখতে ইচ্ছা করে না। দিয়ে দুজনেতে খুব মানে এমনি গালাগালি দিল। দিয়ে ছোট দেওর ঘুমিয়ে গেছে, দিয়ে ছোট যাটা গাল দিচ্ছিল, ওকে বললাম চুপ করে বাবা, যা হয়ে গেছে খুব মানে এমনি গালাগালি দিল। দিয়ে ছোট দেওর ঘুমিয়ে গেছে, দিয়ে ছোট যাটা গাল দিচ্ছিল, ওকে বললাম চুপ করে বাবা, যা হয়ে গেছে চুপ কর। রাত ভোর, এবারে রাত্রির মধ্যে কি হয়েছে সেটা তো আমি জানি না। ওনার ছেলে নানির ঘরে গিয়ে ঘুমায়, দিদিমায়ের ঘরে। আবার আমরাও ঘুমিয়ে গেছি, অনেকবার ঝামেলা হলে আমরা সবাই উঠে আসি, গেট খোলা থাকে। এবার গেট বন্ধ করে ও কি করেছে, আমি ওইটাই তো চিন্তা করছি কি করে কি হয়েছে। আপনারা দেখলেন ট্রাঙ্কের ভিতরে বডি? হ্যাঁ, ওনার বাবা দেখলো, আমি ছিলাম, ওনার দিদি ছিল, ওনার মা ছিল। কি দেখলেন? কোথায় দেখলেন? কোথায় আছে? ট্রাঙ্কের ভিতরে পুরো বডিটাই? হ্যাঁ। তার কি নাম ছিল? রেখা মন্ডল। আপনি কে হন? ওনার বড় যা। আপনার নাম? আমার নাম সরস্বতী মন্ডল স্যার। স্যার কি দেখলেন? আমরা এখানে এসেছিলাম খবর পেয়ে যে একটি মেয়ে এখানে একটা ট্রাঙ্কের মানে ওপরে পড়ে আছে বা ট্রাঙ্কের ভেতরে। তো সেইটা আমি সিআই সাহেব ওসি এলাম, দেখলাম যে একটি মেয়ে ওখানে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।
পোস্টমর্টম না হলে কিছু বোঝা যাবে না, তবে তার স্বামী পলাতক বলেই জানতে পারছি আশেপাশে থেকে। আর তাদের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা এখানে থাকে। দেখা যাক ইনভেস্টিগেশনে কি বেরোয়। ও এখন এইটুকুই। মেয়েটার কি নাম কিছু রেখা মণ্ডল 26-27 বছর বয়স বলেছে আমাদের। ভেরিফাই করতে হবে, দেখি কিভাবে মারা গেছে। ঠিক ঠিক ঠিক। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दो वर्षों के कोरोना काल के पश्चात सभी पर्व त्योहार को लोग जोर शोर से मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में अंग्रेजी न्यू ईयर के आगमन के स्वागत में, नए वर्ष के स्वागत में जोशो खरोश से जुटे कोयलांचल की सुप्रसिद्ध खेलकूद की संस्था स्पोर्ट्स असेंबली परिसर को वर्ष की समाप्ति एवं नव वर्ष के आगमन को लेकर भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। वर्ष की समाप्ति 31 दिसंबर की देर शाम को शानदार कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। संस्था के अध्यक्ष पवन बाजोड़िया, सचिव सौरभ खैतान, कार्यक्रम के संयोजक अनीश पोद्दार इस मोह कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नए वर्ष के आगमन एवं पुराने वर्ष की समाप्ति पर 31 दिसंबर की रात के लिए पूरे संस्था प्रांगण को रंग बिरंगे आकर्षणीय लाइट से सजाया गया है। वहीं सचिव सौरभ खैतान ने बताया कि मुंबई के विख्यात लेजरमैन एवं उनकी टीम के कलाकारों द्वारा अद्भुत नृत्य संगीत की प्रस्तुति की जाएगी। कोलकाता के विख्यात डीजे कुणाल बोस के नेतृत्व में उनकी टीम के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। फिएस्टा मनोरंजन खेल का भी आयोजन होगा। कई तरह के व्यंजन भी उपलब्ध रहेंगे। लोगों को अपने परिवार के साथ बैठकर कार्यक्रम के आनंद के लिए कई कुबाना बनाए जा रहे हैं। कोलकाता की अभिलाषा शुक्ला मोहक अंदाज में एक रिंग करेंगी। संस्था के कई अन्य सदस्य कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अध्यक्ष पवन केजरीवाल ने बताया कि इस तरह अनोखे कार्यक्रम का इंतजार लोगों को साल भर रहता है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है मैंने लास्ट हुआ था, तो अभी 2 साल बाद हो रहा है। तो अनीश बाबू जो हम लोग का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कमेटी मेंबर सब जुड़े हुए हैं प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पूरा क्या आप लोग बोला अलग अलग कबाना बता रहे हैं? कबाना अलग अलग बनता है। प्रोग्राम तो यहाँ का मैंने अभी ठीक से बता नहीं सकते, हम लोग तो स्टाफ हैं, लेकिन जितना जानते हैं जो सुपर डुपर प्रोग्राम होता है यहाँ। तो यह पदाधिकारी आज कोई नहीं है क्या? नहीं, अभी तो कोई नहीं है, आएगा। उन लोग आते हैं थोड़ा देर बाद, बीच बीच में हम लोग को फ़ोन भी कर रहे हैं। आप लोग की व्यवस्था में पूरा जुटे हुए हैं। खबर ले रहे हैं, आ रहे हैं अपने। क्या नाम हुआ आपका? बाबा चटर्जी। साल का तो तैयारी बढ़िया तरह से चल रहा है, पूरा जोरदार से। बाहर से सब डीजे और जो ऑर्केस्ट्रा जो प्रोग्राम होता है, यहाँ का प्रोग्राम तो रंगीन में सबसे ज़्यादा हिट करता है। आप लोग पूरा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। हम लोग स्टाफ लोग, हम लोग भी साथ दे रहे हैं, खट रहे हैं जितना हम लोग। इस बार विशेष आकर्षण क्या है? विशेष आकर्षण क्या है इस बार, आपको पता है? विशेष आकर्षण यही है कि हम लोग का जो लाइटिंग का व्यवस्था बहुत अच्छा है, और अपना क्या है कि अपना डीजे और न्यू ईयर्स का होल फायर, ये सब फायर सब बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। देख रहे हैं तैयारी तो लगभग अंतिम चरण में है। कल कार्यक्रम होने वाला है। और अपना नया स्विमिंग पूल बना होगा, स्विमिंग पूल का ऑर्गेनाइजर भी होगा बढ़िया, और लाइटिंग का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। अपना कहाँ की टीम आई है? बम्बे, कलकत्ता, अपना रांची, ये सब की टीम आई हुई है। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश चौबे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिले के कांकसर विदविहार के विनोदपुर और दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के गौर बाजार के वैद्यनाथपुर क्षेत्र में कोयला खदानों की विकसित की जा रही है। 2 प्रखंडों में 150 बीघा जमीन का अधिग्रहण कर 2 निजी कंपनियों ने कोयला खदानों के निर्माण का प्रारंभिक चरण शुरू कर दिया है। काम हाल ही में शुरू हुआ है। कहा गया है कि दोनों प्रखंडों में समान सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएंगे। इनमें से 3 सुरक्षा गार्ड वैद्यनाथपुर क्षेत्र में और 1 सुरक्षा गार्ड कांकसर विनोदपुर में नियुक्त किया गया है। इसके बाद विनोदपुर निवासी आक्रोशित हो उठे। उनकी मांग है कि उन्हें 3 सुरक्षा गार्ड भी रखने होंगे। तभी शुक्रवार को गैर सरकारी संस्था के कैंप में 2 स्थानीय लोगों के साथ चर्चा बैठक हो रही थी। इसके बाद 2 प्रखंडों के 2 लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कांकसा के दुर्गापुर फरीदपुर थाने के भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। कक्सर का विनोदपुर के लोगों का आरोप है कि वैद्यनाथपुर के लोगों ने उन पर अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया।
लौदोहर के वैद्यनाथपुर क्षेत्र के निवासियों ने जवाबी हमले की शिकायत की। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। এই যে পাওয়ার পয়েন্ট এখানে একটা মাইনিং এর প্ল্যান নিয়েছে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কিছু কারণে হয়তো আজকে মীমাংসা হওয়ার কথা ছিল। তো আমাদের এলাকার লোকেরা ওদের এলাকার লোকদের নিয়ে মীমাংসা করার মানে মীমাংসাতে বসার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আর কি। তো এই দিকের লোকেরা মীমাংসা অনুমোদন করতে গেছিল, মানে আমরা নর্মাল মানুষ যেভাবে যাই। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা প্ল্যান নিয়ে রেখেছিল যে এদেরকে নাকি মার বা পিটুনি কিছু একটা দেওয়া হবে। তো যাই হোক, এবার ওরা ওই প্ল্যান নিয়ে এসেছিলো, এরা এই প্ল্যান নিয়ে গেছিলো। এবার এরা মীমাংসাটা সুষ্ঠুভাবে কমপ্লিট করতে চেয়েছিল, এবার ওরা প্ল্যান নিয়ে রেখেছে। বা হানাদাই কি বলবেন? বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এখানে পাওয়ার প্লাস ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড কোল মাইন্স এখানে একটা কয়লা খনি হবে, সেই নিয়ে আমাদের এখানে কাজ শুরু হয়েছে। তো শুরুতেই আমাদের 4টা গার্ডের দরকার হয়েছিল। তো বৈদ্যনাথপুর গ্রাম থেকে 3টে গার্ড দিয়েছিল, আর বাসুদেবপুর থেকে একটা গার্ড দিয়েছিল। এখন এই গার্ডকে কেন্দ্র করে এখানে আমরা গিয়েছিলাম একটা মীমাংসা মিটিং হওয়ার জন্য। তো আমরা খালি হাতে গিয়েছিলাম, কেউ কিছু নিয়ে যায় নাই। তো হঠাৎ ওরা এলো গাড়ি করে, সব দেশে ওরা হচ্ছে আমাকে মারতে আরম্ভ করে দিল। লাঠি ছোটা নিয়ে বন্দুক দেখাচ্ছে, বোম দেখাচ্ছে, ধুম ছুটে আমদয়ে, তারপরে গদায়, বৈদ্যনাথপুরে ভুলো নিয়ে সালুয়ার আরেকটা রিন্টুনি বেটা ছিল, বাবু সোনা, এমনি করে 20-25 ওরা ছিল। সবাই মিলে এরকম আমাদেরকে হুমকি দিচ্ছে, আর মাছ ধরতে আরম্ভ করে দিল। 3-4 জনকে মেরেওছে। মানে কিসের প্রজেক্ট ওইটা স্বামী স্টিল সেই কাজের নিয়ে কিছু? হ্যাঁ, কাজের নিয়ে, আমাদের শুধু কাজের নিয়ে, অন্য কিছু না। তারপর কি হলো আজকে? ওরা ঝামেলা করতে, ওরা গায়ে জোর দেখাচ্ছে, বোম বারুদ দেখাচ্ছে, আমার দিকে হুমকি দিচ্ছে, মেরেছে। কয়জন আহত হয়েছে? 4-5 জন। কি নাম তোমার? আমার নাম সুব্রত। সুব্রত কি? বাদ্যকর। সেই প্রজেক্টের মানে ওইদিকে যে রয়েছে লাউদহ ব্লক বা কাঁকসা ব্লক, এদের মধ্যে কোম্পানির সঙ্গে ফাইসলা হয় যে এরা যা করবে 50-50। আচ্ছা, দুই তরফ থেকে 50-50 একটা হয়েছিল কাজের ব্যাপারে। তাতে কালকে আমাদের 2টো নাইট গার্ড ছিল, তার মধ্যে একজনকে ওরা হুমকি দিয়ে তুলে দেয়। আচ্ছা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কিছু ছেলে আসে, নিয়ে বলে কেন তুলে দেওয়া হবে, নিয়ে তারা হুমকি দেয় যে না তোমাদেরকে দেওয়া যাবে না, আমরা 75% নেব। কিন্তু কোম্পানির সঙ্গে ফাইসলা হয়েছে যে 50-50 আমাদের যে কোনো কাজে আমরা 50-50 শেয়ার করব। তো লোকগুলো আগগুলোর জন্য গার্ড লাগবে নিশ্চয়ই। আমরা 3টে গার্ড, একটা ডে আর 2টো নাইট, 3টে গার্ড আমরা দিই বৈদ্যনাথপুর থেকে। 3টে গার্ড দেওয়ার পরিবর্তে বাসুদেবপুর কদিনের মধ্যে বললো যে আমাদেরও গার্ড একটা নিতে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে ভাই, তোমাদেরও গার্ড নিতে হবে। ওরা একটা গার্ড নিয়োগ করলো। এইভাবে চলতে থাকে। কাল হঠাৎ করে এসে ওরা আমাদের গার্ড দিকে তুলে দেয় যে আমরা তো তোমাদের গার্ড করতে দেবো না, আমাদের গার্ড করবে। আমরা কেউ ছিলাম না, আমরা বাইরে ছিলাম। আমাকে যখন ফোন করলো, আমি বললাম ঠিক আছে, এখন ঝামেলা করার কোনো প্রয়োজন নাই। প্রশাসন দেখবে এবং পলিটিক্যাল দেখবে এটা কীভাবে কী করা যায়, আর কোম্পানি মিলে বসবে। ঠিক আছে, আজকে ইতি অবসরে যে গার্ড আমাদের লাগানো হয়েছে, সে গার্ডে সকালে ওরা 40-50 জন এসে গার্ডের একটা আমাদের গার্ডের মাথা ফাটিয়ে দেয়। ইতি অবসরে সে গ্রামের লোক খবর পেয়ে গ্রামের লোক ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়ার পরে যাই হোক একটু হয়তো ওরা আবার বাড়ি থেকে গিয়ে মাল মেশিন। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवीटी। रानीगंज क्लोथ मर्चेंट का 32वां वार्षिक समारोह गुरुवार की संध्या को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में संपन्न हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी थे, जबकि अन्य अतिथियों में समाज सेवी ओम भोवाल का, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भाटिया, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, रानीगंज सिटीजन फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम घटक, रानीगंज के ट्रैफिक प्रभारी चित्तातोष मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस वार्षिक सभा में रानीगंज के कपड़ा व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान के लिए चर्चा की गई। सचिव संजय खैतान ने कहा कि यह वार्षिक सभा सिर्फ कपड़ा व्यापारियों की बैठक ही नहीं बल्कि एक त्योहार के रूप में मनाई जाती है, एवं उन्होंने इस बारे में कई विस्तृत जानकारी दी। आयोजन को सफल बनाने में संगठन के महेश तोदी, एस सिन्हा आदि की मुख्य भूमिका रही और कार्यक्रम की अध्यक्षता तारकेश्वर कर ने की। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एवं पदाधिकारियों का धन्यवाद दूंगा कि उनके हर मीटिंग में
रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो तारीफ हमें सुनने मिलती है, इससे रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो भी सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं, उनको काम करने की प्रेरणा मिलती है। और कई बार तो हमने देखा है कि काम वो करते हैं, नाम हमें दे जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही सलीम दा, तारकेश्वर दा, संजय दा सब। और हम लोग चिंता अपने स्वार्थ में ही, अपने स्वार्थ से उठकर अगर कुछ करें तो एक अच्छा हो सकता है। देखिए, शहर अगर बचेगा तो हमारा व्यवसाय बचेगा, अगर हमारा व्यवसाय बचेगा तो हम बचेंगे। तो जब इस टाइप के हम लोग एक गिलहरी की तरह छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन ही हो, जो यज्ञ ये लोग कर रहे हैं, रानीगंज को सब डिवीजन बनाने की मांग है, रानीगंज में टाउन हॉल बनाने की मांग है, तो उसमें हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। कहीं कोई डेपुटेशन देना है, कहीं चलना है, मिलने में जाना है, तो देखिए सब हम लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ पूर्व कहीं पर कमिटमेंट्स हैं। उससे आगे बढ़कर अगर एकजुट हम लोग होते हैं तभी ये काम आगे बढ़ सकता है। शहर को बचाने की चिंतन सबको करनी पड़ेगी और एकजुट होकर करनी पड़ेगी। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन पार्टी की परिकल्पना बहुत सालों से कर रहा है और अब आशा है कि यह हम लोगों। और अभी जो संजय खेतान मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ कह दिया, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, संजय मेरा छोटे भाई के जैसा है और ये हमेशा मुझे गाइड की तरह मानता है और वे छोटी छोटी राय भी मुझसे लेते रहे। आज की बात नहीं है, 20 साल से हमेशा मुझसे राय लेते रहते हैं। और मेरा कोई भी कार्य है, घर का, परिवार का, फैमिली का, कोई फंक्शन हो, मैं तो इनको देखे निश्चित हो जाता हूँ। तुम समझो, तुम्हारा काम समझे। मेरी बेटियों की शादी, मेरे बेटे की शादी, टोटली में तो परिवार शब्द जो है, ये एक्चुअली शब्द बहुत छोटा था, लेकिन इसका अर्थ अगर हम लोग निकालें, हम लोग सभी इस परिवार का अर्थ निकालें तो बहुत बड़ा अर्थ है ये। সভাপতি সম্পাদক এবং মঞ্চে যে বিশিষ্ট নাগরিকরা আছেন এবং এই অ্যাসোসিয়েশনের যে সভ্যরা উপস্থিত আছেন, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে রানিগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরামে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্টের কাছে এবং বিভিন্ন অথরিটির কাছে আপনারা উত্থাপন করেন। আমার কথা হচ্ছে যে আমি ওই আজ থেকে 25 বছর আগে আপনাদের এখানে এসেছিলাম, তো আমি খুব সবাইকে বলেছিলাম উত্তরটা কি, এখন আমার মনে আছে। অ্যাসোসিয়েশন মানে আমাদের দেশের যা পরিস্থিতি, মানে গোটা দেশেই বলতে পারেন, আপনি একা একা যাই করেন কিচ্ছু হবে, আপনি একা একটা চিঠি দেন তার জবাব পাবেন, এবং মানুষ বাধ্য হয় যৌথভাবে কিছু করতে। আর এই যৌথ চিন্তা থেকে অ্যাসোসিয়েশনের চিন্তা মানে এটা আমাদের সামনে এসেছে। সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন, এখানে যে চিঠি দেওয়া হবে তো আপনার স্টাফ থেকে অ্যাওয়ার্ড করে দেওয়া হবে। আমার যেটা বলার উদ্দেশ্য, আপনারা সবাই নিরাপদ থাকুন, আগুন থেকে সুস্থ থাকুন এবং আপনাদের বিজনেস যে ক্যাপিটাল সেটা দিন দিন ইনক্রিজ করুন, কোনোভাবে ফায়ার থেকে ডিটোরিয়েট না হয়ে যায়। বিশেষ করে যে বড় বাজারের রাস্তাটার হাল ভীষণ খারাপ, আর বড় বাজারের সিআর রোডটা দেখবেন সমস্ত রিটেল দোকান এখানে আছে, কাপড়ের বলুন, সোনার বলুন এবং বাসনের বলুন, স্টেশনারি বলুন, এবং অনেক পুরনো পুরনো দোকান আছে, যেসব দোকান 50 বছর, 60 বছর, 80 বছরের দোকান, এবং এই দোকানগুলোতে বাইরে থেকে প্রচুর খদ্দের আসে। আমি বলেছিলাম যে দেখুন, আমরা এই রাস্তার উপরে কিন্তু লোকের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, তারা আসা যাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে, এই রাস্তাটা যদি ব্যবস্থা করেন। তো যাই হোক, সিআর রোডটা তো পিডব্লিউডি রাস্তা, ওটা সংস্কার হয়ে গেছে। আমাদের কথা শুনে তাপস ব্যানার্জি মহাশয় ওনার এডিডিএ ফান্ড থেকে 17,92,000 টাকা স্যাংশন করে এবং এই রাস্তাটা তৈরি করে। আমরা সেই রাস্তাটা তৈরি করার সময় যখন ওনাকে বলেছিলাম, উপস্থিত যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ আছে, আমার শ্রদ্ধা প্রণাম। সামনে আগত যারা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আছেন তাদের তো আমার শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই, বাকি যারা আছেন তাদেরকেও আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা। আজকে এই শুভ সন্ধ্যায় আমি আমন্ত্রিত হয়ে আমি নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি এত একটা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্যে। যদিও আজকে সকাল থেকে আসানসোলে আজকে একটা বাউরি সমাজের সম্মেলন ছিল, যেটা সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত চলো, সকাল 8টা থেকে নিয়ে প্রায় 10,000 মতো লোক ওরা সমবেত হয়েছিল।
যাক স্মুথলি পেরিয়েছে। তো সত্যি ক্লান্ত, তো আরও বেশি আনন্দিত হচ্ছে এখানে আসার জন্য বা এত ভালো ভালো ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ হওয়ার জন্য। তো ধন্যবাদ সকলকেই। আর আজ আমি এখানে ট্রাফিকে ওসি ঠিকই, যে ট্রাফিক সিস্টেম আমি চালু করেছিলাম এখনও বলবৎ আছে। কিছুটা ম্যান পাওয়ারের জন্য তো সবসময় আমি এটা কন্টিনিউ করে উঠতে পারছি না। हमें कई तरह की कठिनाइयाँ आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की समस्या, लेबर समस्या, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, बदहाल सड़क की अवस्था, बाहर से जो ग्राहक आते हैं उनके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था, इन पर लगातार हमारी नज़र रहती है और इन पर हम लगातार कार्य करते रहते हैं। इस कड़ी में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा आपको कि रानीगंज में पार्किंग की बहुत गंभीर समस्या है। इस मुद्दे में हम लगभग साल भर से लगे हुए हैं और हमारी पेरेंट्स बॉडी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और हमें विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है ये काम में हम बहुत जल्द से जल्द सफल हो पाएंगे और रानीगंज में जो ये पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है इसका समाधान कर सकेंगे। हमें ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमारे पेरेंट्स बॉडी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर समय हमारा साथ सहयोग करती है। एज ए अभिभावक के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। हम इसके समय समय पर आभारी थे, आभारी है, आभारी रहूं। स्वागत करता हूं। अभी हर साल की तरह वो इस साल भी आके हमारी सभा में का शोभा बढ़ाएं। প্রশাসনিক কারণে এবং রাজনৈতিক কারণে সে গরিমা বোধহয় অনেক জায়গায় বিচ্যুত রয়েছে, যে কোনো কারণ অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। সেই গরিমা নিশ্চয়ই আগামী দিনে ফিরে আসবে। আপনাদের একটা অনেক সম্পন্ন একটা দাবি আছে, এইটা যদি তারা মহকুমা করে দেওয়া হয় আমার মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে এটা কিন্তু মহকুমা হয়। আরেকটা আমি বলি, যেটা আমি স্বীকার করি, যে আসানসোল দুর্গাপুর যে পশ্চিম বর্ধমান রোড, এর 90% দান কিন্তু রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এবং রানীগঞ্জের জনগণের। তারা সেই সময় রবীন্দ্রনাথ পরিচালনার নেতৃত্বে তারা যে আসানসোলের লোককে মোটিভেট করতেন, অনেকে জানেন না, তারা বারবার যে বিজয়বাবুকে মোটিভেট করতেন আসানসোল সময়, তারা যে বিকাশবাবুকে মোটিভেট করতেন, তারা যে তপন চাঁদিকে মোটিভেট করতেন, জ্যোৎস্না মিত্রকে মোটিভেট করতেন, আমাদের ডক্টর খান্ডেলওয়ালকে মোটিভেট করতেন, আমাদের রামেশ্বর কেটিয়াকে মোটিভেট করতেন। সে বিজয়বাবু উনি যেতেন, মিটিং করে এই এখানে যেতে হবে, ওখানে যেতে হবে, দাবিপত্র জানাতে হবে। দীর্ঘদিনের ফসল একদিনে হয়নি, রোগ একদিনে তৈরি হয়নি। অনেকে ভাবছে হাতে পেয়ে গেল, হাতে পাওয়া যায়নি, তার জন্য অনেক পথ এনাদের পরিক্রম করতে হয়েছে এবং তার জন্য রানীগঞ্জবাসী আপনাদের যা আগে ছিলেন দায়িত্বে বিভিন্ন পদে যারা ছিলেন তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজটা করে আজকে আসানসোল দুর্গাপুর আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা যে আসানসোল হেডকোয়ার্টার হয়েছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। एक मां की मृत्यु किसी के जीवन में ऐसा शून्य छोड़ जाती है जिसे भरना असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी प्रधानमंत्री की मां के 100 साल की उम्र में निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह सादगी और जीवन के उच्च मूल्यों की प्रतिमूर्ति थी। पटेल ने ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की मां पूज्य हीराबेन के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। पूज्य हीरा बाबा उदारता, सादगी, कड़ी मेहनत और जीवन के उच्च मूल्यों की प्रतीक थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दुख व्यक्त किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन का निधन बहुत ही दर्दनाक खबर है। व्यक्ति के एक जीवन में मां का विशेष स्थान होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और प्रधानमंत्री और उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके स्नेह और सच्चाई ने देश को सफल नेतृत्व दिया है।
नड्डा ने एक ट्वीट में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। हीराबाजी का संघर्ष में और सदाचारी जीवन सदैव प्रेरणादायी रहा है, जिनके स्नेह और सत्यनिष्ठा ने देश को सफल नेतृत्व प्रदान किया है। माता जी का जाना अपूर्णीय क्षति है, यह अपूर्णीय क्षति है। इस खालीपन को भरना असंभव है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी की मां को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें बेहद सरल और प्यारी छवि पर प्रकाश डाला, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताजी हीराबेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। हीराबाजी ने अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए अपने परिवार को जो संस्कार दिए हैं, उससे देश को एक नरेंद्र भाई जैसा नेता सम्मान में मिला है। गडकरी ने कहा कि उनकी अत्यंत सरल और प्रेमपूर्ण छवि को हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और नरेंद्र भाई और मोदी परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हीराबाद संघर्ष, कड़ी मेहनत और स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। जिन परिस्थितियों में उन्होंने परिवार का पालन पोषण किया है, वह एक आदर्श है। मांडविया ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पूजनीय मां हीराबेन के निधन के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मां व्यक्ति के निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाती हैं। दुनिया में कोई भी उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि मां का निधन एक बेटे के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति है। योगी ने ट्वीट किया कि एक बेटे के लिए मां ही पूरी दुनिया है। एक मां की मृत्यु एक बेटे के लिए एक असहनीय और अपूर्णीय क्षति है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदरणीय मां का निधन बहुत दुखद है। भगवान श्री राम दिवंगत को शांति प्रदान करे, पवित्र आत्मा को उनके पवित्र चरणों में स्थान दे। ओम शांति। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हीराबेन मोदी सादगी, विनम्रता और दृढ़ विश्वास की प्रतीक थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री की मां के निधन पर दुख जताया। इसके साथ ही पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी की मां के निधन से काफी दुखी हैं और सबने अपने अपने शोक व्यक्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट।